بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت سے بات چیت شروع کرنے کی مشروط پیشکش کرتے ہوئے بڑی شرط عائد کر دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی پر چل پڑے، چین کی مزید 28 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ 2 سال کے لیے معطل۔ ترکی گیس کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ یورپ کی تمام تر مخالفت کے باوجود بحیرہ اسود میں مزید اور وسیع ذخائر دریافت کر لیے۔ چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی قوت اور عالمی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے امریکی سینٹ میں بل پیش کر دیا۔ پاکستان نے بھارت میں دوسری مرتبہ یورینیم کی اسمگلنگ پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واقعے میں کار فرما عزائم کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف قرارداد کی حمایت کیوں نہیں کی؟ فلسطینی وزیر خارجہ بھارت پر برہم۔ اسرائیل کے خلاف حمایت پر یونان میں فلسطینی سفیر نے پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا۔ فیٹف ایکشن پلان پر عمل درآمد، پاکستان کے بلیک لسٹ میں جانے کا اب کوئی خطرہ نہیں۔ نائجیریا نے ٹویٹر پر پابندی عائد کر دی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کو بات چیت کی مشروط پیشکش کر دی۔ انہوں نے یہ پیشکش برطانوی خبررساں ایجنسی روئٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے کی۔ عالمی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اگر بھارت مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس بحال کرنے کا روڈ میپ دیتا ہے تو بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی اہمیت ختم کر کے ریڈ لائن کراس کی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت 5 اگست کے اقدامات واپس لینے کا روڈ میپ دیتا ہے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کا اقدام بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ مہذب اور کھلے تعلقات چاہتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں غربت کم کرنی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اس وقت بھارت کی طرف سے بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے کوئی رد عمل نہیں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے حریف ڈونلڈ ٹرمپ کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید 28 چینی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں، جبکہ سابق دور میں 31 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں جسے برقرار رکھا گیا ہے۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک نئے حکم نامے پر دستخط کر دیے جس میں چین کی 28 کمپنیوں کی امریکہ میں سرمایہ کاری پر پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ حکم نامہ سابق صدر کے دور کے حکم نامے کا تسلسل ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 31 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی تھی۔ صدر جو بائیڈن نے سابق دور کے اس حکم نامے کی نہ صرف توسیع کی بلکہ 28 مزید کمپنیوں کو پابندی کے شکار کمپنیوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اس طرح اب مجموعی طور پر 59 کمپنیوں کو پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فیس بک نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ 2 سال کے لیے بند کر دیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فیس بک کمپنی نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ 2 سال کے لیے معطل کیا ہے۔ فیس بک کمپنی کے نائب صدر نے بیان میں کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹ 7 جنوری سے مکمل طور پر معطل ہو جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کمپنی کے رولز کی شدید خلاف ورزی کی۔ کمپنی نے ہر پہلو کا جائزہ لے کر معطلی کا فیصلہ کیا ہے۔ نائب صدر کا کہنا ہے کہ فیس بک نے خلاف ورزی سے متعلق نئی پالیسی نافذ کر دی ہے۔ رولز کی خلاف ورزی کرنے والی عوامی شخصیات بشمول سیاستدانوں پر بھی جرمانے عائد کیے جائیں گے۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की कुदरती गैस की दौलत से माला माल हो गया। यूरोप की तमाम तर मुखालफत के बावजूद बहीरा असवद में मजीद और वसी ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। तफसीलात के मुताबिक तुर्की ने तवानाई के नए ज़खायर की तलाश के दौरान एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्की ने बहीरा असवद में मजीद 135 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। यूं बहीरा असवद में दरियाफ्त होने वाले कुल ज़खायर 550 मिलियन क्यूबिक मीटर हो गए। इससे कबल गुज़िश्ता साल तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। यूरोप की शदीद मुखालफत के बावजूद तुर्की ने बहीरा असवद में गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए थे। अक्टूबर 2020 में तुर्की ने बहीरा असवद में गैस के 82 बिलियन क्यूबिक मीटर ज़खायर दरियाफ्त किए थे। वाज़ेह रहे कि तुर्की की तरफ से समंदरी हदूद में तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए एक रिसर्च जहाज भेजने के बाद यूनानी और तुर्की जंगी बहरी जहाज आमने सामने आ गए थे, जबकि यूरोपीय ममालिक की जानिब से इस तमाम सूरत हाल में यूनान का साथ देकर तुर्की को पाबंदियों की धमकियां दी जा रही थी। ताहम तुर्की ने इन धमकियों को खातर में न लाते हुए गैस के मजीद ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन की बढ़ती हुई इक्तिसादी कुव्वत और आलमी असर व रसूख का मुकाबला करने के लिए जो बाइडेन इंतजामिया ने अमेरिकी सेनेट में एक्ट पेश कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कई माह की बहस और रुकावटों के बाद बिल आखिर बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल में अगले 4 साल तक हर साल $300 मिलियन का फंड मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। बिल का मकसद मैशियत, टेक्नोलॉजी और अस्करी व सिक्योरिटी समेत मुतअद्दिद शोबों में चीन का भरपूर मुकाबला करना होगा। बिल में चीन को अमेरिका का स्ट्रेटजिक हरीफ करार दिया गया है। बिल में कहा गया है कि एशिया बहरुल काहल में ताकत का तवाज़ुन अमेरिका के हक में रहना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने भारत में दूसरी मर्तबा यूरेनियम की स्मगलिंग पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए वाक़े में कारफरमा अज़ाइम की तहकीकात का दुनिया से मुतालबा कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने इस हवाले से कहा है कि भारत में 6 किलोग्राम यूरेनियम गैर कानूनी फरोख्त की कोशिश के एक और वाक़े की रिपोर्ट्स मंजरेआम पर आ गई। गुज़िश्ता वाक़े में भारतीय रियासत महाराष्ट्र में 7 किलोग्राम यूरेनियम की फरोख्त की कोशिश की गई। तर्जमान ने कहा है कि भारत में ऐसे वाक़यात सख्त तशवीश का बायस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 1540 और बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी का जोहरी मवाद की फिजिकल प्रोटेक्शन कन्वेंशन तमाम रियासतों को जोहरी मवाद की गलत हाथों इस्तेमाल रोकने के लिए रियासतों को पाबंद बनाते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फलस्तीन के वजीर खारजा रियाज अल मालकी ने गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल की करारदादों की हिमायत न करने पर भारत की मजम्मत कर दी। तफसीलात के मुताबिक फलस्तीनी वजीर खारजा ने भारतीय वजारत खारजा को खत लिख कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और कहा है कि इसराइल की गजा में हालिया बमबारी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल में पेश की गई करारदाद की भारत ने हमायत नहीं की। रियाज अल मालकी ने भारतीय रवैये पर तनकीद करते हुए कहा है कि भारतीय हुकूमत ने जुल्म के खिलाफ आलमी राय आमा की आवाज के साथ देने का अहम मौका गंवा दिया। उन्होंने मजीद कहा है कि इसराइल के जालमाना इक़दामात के खिलाफ हर मुल्क को आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन आलमी इंसानी हकूक कौंसिल में भारत समेत 14 ममालिक ने मजलूम फलस्तीनियों का साथ नहीं दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूनान में फलस्तीनी सफीर मरवान तबासी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सलामती कौंसिल में और आलमी मीडिया पर जिस तरह फलस्तीनी अवाम की हमायत की, हम इस पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत पुराने मरासम है। पाकिस्तान और फ़लस्तीन के दरमियान मसाली भाईचारे का रिश्ता है। फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर यूनान में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हालिया इसराइली जारहियत के खिलाफ जिस तरह पाकिस्तान और यूनान समेत दूसरे ममालिक ने खुलकर इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, इस पर हम बहुत मशकूर हैं। उनका मजीद कहना था कि इसराइल ने हालिया दिनों में फ़लस्तीनी अवाम पर जो जुल्म का बाजार गर्म रखा, जिसमें दर्जनों बेगुनाह फ़लस्तीनी बच्चों ख़वातीन को शहीद किया गया, वो काबिल मज़म्मत है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि अब पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने का कोई खतरा नहीं। जून के आखिर तक फैक्टफ का एक्शन प्लान मुकम्मल कर लेंगे। पाकिस्तान फैक्टफ के दोनों एक्शन प्लान मुकम्मल करने के करीब है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो फैक्टफ के दो प्लान पर अमल कर रहा है, एक 40 और दूसरा 27 निकाती प्लान है। हम दोनों एक्शन प्लान मुकम्मल होने के बहुत करीब हैं। फैक्टफ के एक्शन प्लान को जल्द मुकम्मल कर लेंगे। पाकिस्तान ने FATF के मुश्किल प्लान को मुकम्मल कर लिया। 40 में से 31 निकात पर अमल दरामद कर लिया गया, जबकि 27 निकात में से 24 निकात मुकम्मल किए जा चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि जून के आखिर तक FATF का एक्शन प्लान मुकम्मल कर लेंगे। अब पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने का कोई खतरा नहीं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। नाइजीरिया ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर की जानिब से नाइजीरियन सदर का ट्वीट डिलीट करने पर नाइजीरिया ने ट्विटर सर्विस मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल नाइजीरिया के सदर के ट्वीट को क़वाइदो ज़वाबित के खिलाफ करार देते हुए डिलीट कर दिया गया। नाइजीरियन सदर ने ट्वीट में मुखालफिन के लिए धमकी अमेज ज़बान इस्तेमाल की थी। नाइजीरियन सदर का ट्वीट एक ऐसी सूरत हाल में सामने आया था जब मुल्क में अलहदगी पसंदी के जज्बात और तशद्दुद का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। सदर ने ट्वीट में रियासत के हामी को सिक्योरिटी हुकाम और हुकूमत पर बढ़ते हुए हमलों पर सजा देने की धमकी दी थी। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।